Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and from today onwards I have started a new series, that is the NORCET PYQ practice series, because practice PYQ is something very important. By that you get to know which all the topics are important and which type of questions are asked from that topic. So because of that, practicing MCQ PYQ is something very important. So because of that I started PYQ practice series from today. So daily आपको PYQ मिलेगा on different subjects like psychiatric, OBG, MSN and all. So today is our first day. So the first questions that was asked in NORCET 9 pre, that is a delusion psychiatric patient, a delusional psychiatric patient in the ward is refusing to eat the evening meal, right? Stating that the food is poison. Okay, the nurse wants to encourage the patient to eat without challenging the delusion directly, right? What is the most appropriate nursing response? Very nice question. So देखो, basically NORCET is all about the practical things. It's not कि आपने concepts पढ़ के चले गए and हो गया. No, these concepts you have to apply in the patient situation, in the hospital settings में वो जो भी concepts आपने पढ़ा उसको कैसे apply करना, that's something NORCET is testing, and that's a very important thing that you have to learn. ठीक है. So यहाँ पे आपसे basically क्या बोला कि एक delusion का patient है, and you know very well delusion क्या होता है. Delusion हमने पढ़ा था. Definition of delusion is something very important. Delusion is something the firm, false, fixed belief. ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन. अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आप इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आएगा कर लोगे. सो डिल्यूजन इज फर्म, फॉल्स, फिक्स बिलीफ दैट इज अनशेकेबल. वेरी इंपॉर्टेंट, अनशेकेबल. ठीक है ना. सो ये अनशेकेबल है. सो डिस्पाइट यू विल गिव the evidence, patient will not understand because this belief is unshakable, firm, false, fixed belief है. ठीक है. सो डिल्यूजन का पेशेंट है एंड वहाँ पे आपको उनको you are encouraged to eat without challenging the delusion directly. What is the most appropriate nursing response? So whenever you are treating, whenever you are dealing with delusion patient, your first aim should be कि आपको यहाँ पे प्रेशराइज नहीं करना है, नॉन जजमेंटल नहीं होना है एंड किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना है. ठीक है. आपको एविडेंस नहीं देना कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज उनको कुछ पता नहीं है, दे हैव नो इनसाइट. ठीक है. सो फर्स्ट बोला उन्होंने टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. क्या कर रहे हो आप? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि इट इज अनशेकेबल बिलीफ. डिस्पाइट ऑफ गिविंग द एविडेंस पेशेंट विल नॉट अंडरस्टैंड, पेशेंट विल नॉट फॉलो योर कमांड, है ना. सो आप उसके सामने फूड को टेस्ट कर रहे हो कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, खा सकते हो. पेशेंट विल नॉट बिलीव. पेशेंट कहेगा कि आप आपने इसमें से जहर निकाल दिया है या फिर आपने एंटीडोट्स ले लिया है. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. बी है एश्योर द पेशेंट दैट ऑल फूड सर्व इन द हॉस्पिटल इज सेफ टू ईट. अगेन द सेम थिंग यू आर टेलिंग. यहाँ पे भी पेशेंट बिलीव नहीं करेगा. सो ए भी गलत है, बी भी गलत है. सी है offer the packed food to the patient. So this is something like we can say yes it is correct कि यहाँ पे आप पैक्ड फूड पेशेंट को दे रहे हो तो क्या होगा कि आप एक ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हो, पैक दे रहे हो. पेशेंट खुद उसको ओपन करेगा तो उसको एक ट्रस्ट मिल रहेगा कि हाँ ये सही होगा, इसमें पॉइजन मिक्स नहीं किया होगा. तो सी को चलो हम करेक्ट मान सकते हैं. डी क्या बोला है? एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट इट इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज. अगेन रॉन्ग, बिकॉज इन ड्यूरिंग एक्टिव डिल्यूजनल पेशेंट हैव नो इनसाइट. जब इनसाइट नहीं है तो आप उसको सिम्टम्स बताओगे, प्रोग्नोसिस बताओगे, पैथोफिजियोलॉजी बताओगे, नो यूज, है ना. सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग. So according to the options, the best appropriate nursing action is C. You have to provide a packed food so that patient ये ना बोले कि इसमें क्या है, इसमें पॉइजन मिक्स है. बिकॉज पेशेंट को क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है. पेशेंट हैव फर्म फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ दैट somebody want to harm him, somebody is poisoning their food, somebody is following him, है ना. So that is the delusion of persecution. So यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? The best option is the C is the correct answer. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. So देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट था कि दिस डेफिनेशन ऑफ डिल्यूजन.
And how we apply this definition of delusion in solving the questions, that you have to learn. So that's why I always insist you people कि सिर्फ only getting the knowledge is not sufficient. आप नॉलेज लो, यस इम्पोर्टेंट, उस नॉलेज को अप्लाई जरूर करो. एंड अप्लाई कैसे करना है? बाय सॉल्विंग MCQ as much as possible. Okay, so first questions clear हो गया. Coming to the second questions, and this is something very important questions, that is a psychiatric patient keeps repeating the same phrases again and again. For example, I want to go home, 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 home. This phenomena is called echolalia. So echolalia क्या होता है? Echolalia is something the patient is repeating whatever you are telling. So let's suppose you said what's your name, patient will say the same thing, what's your name. So the same thing the patient is repeating whatever you are telling. So that is the echolalia. It is wrong. बी है इकोप्रेक्सिया. सो इकोप्रेक्सिया क्या होता है? वट एवर यू आर डूइंग, सो योर एक्शन रिपीट, सो योर सेम एक्शन रिपीट बाय द पेशेंट. सो दैट इज द इकोप्रेक्सिया. लेट्स सपोज यू आर टेलिंग व्हाट्स योर नेम एंड आपने गलती से ऐसे कुछ कर लिया, तो पेशेंट विल आल्सो रिपीट द सेम एक्शन, है ना. सो सेम एक्शन रिपीट करेगा तो इकोप्रेक्सिया, सेम वर्ड सेम सेंटेंस रिपीट करेगा तो इको ले लिया. ठीक है. कमिंग टू सी एंड डी. सी क्या बोला है? पहली ले लिया, एंड डी है वर्बिग्रेशन. सो पहली ले लिया क्या होता है? पहली ले लिया इज समथिंग की रिपीटिंग द लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड और सेंटेंस इन वेरी फास्टर एंड क्वाइटर. सो धीरे धीरे बहुत फास्ट बोलेगा, बहुत क्वाइटर धीरे धीरे एकदम फेड आउट हो जाएगा. सो काइंड ऑफ इको. कहीं पे आप बोलते हो जब इको होता है तो क्या होता है? एकदम से तेज होता है, धीरे धीरे फेड होता है. सो दैट इज द पहली ले लिया. ठीक है. वर्बिग्रेशन क्या होता है? वर्बिग्रेशन में भी क्या होता है कि लास्ट, बेसिकली लास्ट वर्ड को हम नॉनसेंस की तरह रिपीट करना, है ना. सो दैट इज द पर्पसलेस रिपीटिंग द लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड. बट यहाँ पे जो रिपीट करेंगे दैट इज कांस्टेंट टोन, वॉल्यूम एंड रिदम. सो टोन, वॉल्यूम, रिदम एवरीथिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा. एंड पेशेंट पर्पसलेसली रिपीट करेगा लास्ट वर्ड को, है ना. सो लाइक आई वांट टू गो होम, 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 होम. सो दैट इज द वर्बिग्रेशन. सो ये क्या है? दैट इज द वर्बिग्रेशन. सो correct answer is D, that is vervigration. And basically vervigration is seen in psychiatric patients like schizophrenia, catatonic schizophrenia में देखने को मिलता है. So correct answer is D. ठीक है. Coming to the next questions, that is a patient taking lithium, very important drugs. lithium हो गया, antipsychotics drugs हो गए, antidepressants drug हो गए, very important है ना. psychiatric medicine is something very very important. so all pharma में अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आप सारे फार्मा नहीं पढ़ सकते हो, सो एटलीस्ट साइकेट्रिक फार्मा पढ़ के आपको जाना ही जाना. ओके. सो पेशेंट टेकिंग लिथियम फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप्स न्यू मसल वीकनेस, कोर्स tremors, very very important, nausea and drowsiness, right? What is the nurse's priority action? So first we have to understand कि patient ने lithium लिया and उसको ये symptoms क्यों आ रहे हैं. So you know very well that lithium having very therapeutic range. अगर उससे कम होगा तो proper action नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा. सो दैट थेराप्यूटिक रेंज कितना है? दैट इज 0.6 to 1.2 इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ lithium, right? So if the level is more than 1.5 milli equivalent per liter, then lithium toxicity start हो जाएगी. ठीक है. So lithium toxicity का साइन क्या है? So that is the very very important is the coarse tremor. So we have two types of tremor. First is fine tremor and second one is the coarse tremor. Fine tremor is the side effects of lithium. बट अगर कोर्स ट्रेमर बोल देना अगर आपके क्वेश्चंस में, सो दैट इज द टॉक्सिसिटी साइड, है ना. तो कोर्स ट्रेमर कहाँ आ जाता है? टॉक्सिसिटी में आ जाता है. ठीक है. सो कोर्स ट्रेमर हो गया, ठीक है ना. प्लस मसल फेसिकुलेशंस, न्यू मसल वीकनेस हो गया, ठीक है ना. उसके साथ साथ पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, GI लाइक एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, कोर्स ट्रेमर हो गया, मसल फेसिकुलेशंस, मसल वीकनेस हो गया, ठीक है ना. उसके साथ साथ पेशेंट का लाइक ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो गया, ड्रॉजी हो गया. सो दिस ऑल आर द डिसआर्थरिया हो गया, है ना. सो दिस ऑल आर द टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम. तो कभी भी अगर टॉक्सिसिटी होगा तो व्हाट्स योर स्टेप? सो इन केस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप ड्रग. स्टॉप
लिथियम। फटाफट हमें पेशेंट का लिथियम को स्टॉप करना है, पेशेंट को हाइड्रेट करना है, ठीक है ना, पेशेंट को हाइड्रेट करना है। एंड अगर एंटीडोट लाइक सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट है तो वो हमें पेशेंट को देना है। एंड अगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो लास्ट सॉल्यूशन इज हीमोडायलिसिस, ठीक है ना। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये हमारे सिम्टम्स देखकर, न्यू मसल वीकनेस, फोर्स ट्रेमर्स, नोजिया एंड ड्रोजीनेस, इसको देख के हमें पता चल गया कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गया है। देन पेशेंट को अगर टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गया है तो नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, ए इनकरेज ओरल फ्लूइड्स एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट लिथियम डोज। बिल्कुल गलत, बिकॉज हमने क्या बोला कि जब अगर लिथियम टॉक्सिसिटी होगा वी हैव टू इमीडिएटली स्टॉप द ड्रग्स, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इनकरेज ओरल फ्लूइड, ये सही है कि हमें पेशेंट को हाइड्रेट करना है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन प्रेसिपिटेट द लिथियम टॉक्सिसिटी, सो वी हैव टू हाइड्रेट द पेशेंट। हाइपोनेट्रीमिया अगर है तो उसको हमें रिजॉल्व करना है। बट उन्होंने आगे बोला कि कंटिन्यू द नेक्स्ट लिथियम डोज, सो दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। बी बोला है असेस सीरम लिथियम लेवल इमीडिएटली, यस इट इज इंपॉर्टेंट, तो बी हम करेंगे, ये हमारे करेक्ट वाले ऑप्शंस में आता है। सी पढ़ते हैं क्योंकि हमें बेस्ट आंसर देना होता है ना, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू गिव द best answer in all the four options, so that's why during exam you have to read all four options very carefully. So that's why I started this series. My whole aim to start this series is that how you should appear in the exam, how you should eliminate the options, how you should understand the questions, right? So C bola hai administer anxiolytics for tremor. So this tremor is not because of ki side effects hai ya fir नॉर्मल है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी को ट्रीट करना है ना, आप उस ट्रेमर को क्यों रिड्यूस करोगे, आप सिम्टम्स को क्यों रिड्यूस करोगे, आप कॉज को ट्रीट करो, है ना। तो सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए आपको कॉज ट्रीट करना है, सिम्टम्स को रिड्यूस नहीं करना है। तो कॉज ट्रीट करोगे सिम्टम्स अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो आपको क्या बोला यहाँ पे कि एंग्जियोलिटिक्स रख देना है ट्रेमर को ट्रीट करने के लिए। इट इज अगेन रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिसिटी की वजह से कोर्स ट्रेमर हो रहा है, टॉक्सिसिटी ट्रीट कर दो, कोर्स ट्रेमर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डी है रेस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक एंड मॉनिटर इनटेक आउटपुट। सो यस इट इज करेक्ट, हमें इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, बट उन्होंने क्या बोला कि हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है। सो अभी मैंने क्या बोला, डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया प्रेसिपिटेट द लिथियम टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे अगर आप सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो हाइपोनेट्रीमिया होगा एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट इंक्रीज द lithium toxicity, ठीक है ना। so it is also wrong. so in all four options A, B, C, D, the best answer that is, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप तो लिखा नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमें असेस करना है सीरम लिथियम लेवल इमीडिएटली। सो द करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ओके। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चंस, देखो a 16-year-old girl is diagnosed with borderline personality disorder. Again the personality disorder is something the very important topic of psychiatry, ठीक है। which of the following is the typical characteristics of borderline personality disorder? so borderline personality disorder is also known as emotionally unstable personality disorder, है ना। so as the name suggests borderline, है ना, so सब कुछ क्या है, बॉर्डर पे है, सब कुछ क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। सो इसमें से कौन सा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ए है अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फियर ऑफ अबंडनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या बोला, बॉर्डरलाइन अनस्टेबल इमोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सब कुछ क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, बहुत इंटेंस फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप होगा, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। सो लाइक मरने और जीने वाला फ्रेंडशिप होगा, बट एट द अनदर मोमेंट क्या हो जाएगा, उससे इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी। सो बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप इनका रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या रहता है, इम्पल्सिविटी रहती है, इम्पल्सिविटी रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा इन पेशेंट्स में रहता है, ठीक है ना, मूड स्विंग्स हो गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर इन इस वे में रहता है कि वो खुद को हार्म करेगा बट खुद को लाइक मरना नहीं चाहता, खुद को मारना नहीं चाहेगा, बट बिहेवियर इस तरीके से करेगा, खुद को इंजर्ड करेगा, लाइक मल्टीपल कट्स हो गया, है ना। तो इस तरीके का सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होगा, बट यस खुद को मारना नहीं चाहेगा कभी भी, है ना। जैसे डिप्रेशन में
सुसाइड करते हैं, तो उनका मेन मोटिव होता है कि हमें मर जाना है, बट यहाँ पे वो खुद को मरना नहीं चाहते हैं, जस्ट सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होता है, मूड स्विंग्स होता है, इम्पल्सिविटी होता है, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है एंड फियर ऑफ अबंडनमेंट। सो ये सारे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ऑफ बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ए करेक्ट हो सकता है, बट यस ए करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि बीसीडी नहीं पढ़ना है, बीसीडी भी पढ़ना है, ठीक है ना, हो सकता है वो और करेक्ट हो, है ना। सो बी है सोशल विथड्रॉल एंड लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, सो दैट इज द टिपिकल फीचर ऑफ सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजॉइड मतलब क्या मैंने बताया था, इमोशनली कोल्ड। इमोशनली कोल्ड मतलब कि उसको कुछ फीलिंग ही नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, इमोशनली कोल्ड है। सो सोशल विथड्रॉल एंड लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, सो दैट इज द सिजॉइड, टिपिकल सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सो इट इज रॉन्ग। सी है प्री ऑक्यूपेशन विथ ऑर्डरलीनेस एंड परफेक्शनिज्म, तो सब कुछ उसको एकदम ऑर्डर चाहिए, परफेक्शन चाहिए, टाइम पे एकदम पंक्चुअल होगा, टाइम से ऑफिस जाएगा, टाइम से ऑफिस से आएगा, एकदम सब कुछ एकदम बेस्ट होना चाहिए। सो दैट इज द फीचर ऑफ ओसीपीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव personality disorder. So again this is wrong. D है excessive suspiciousness and distrust of other. So this is the typical sign of paranoid personality disorder. So paranoid मतलब something की शक होना, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होना, मिसट्रस्ट होना, एक्सेसिव सस्पिशियसनेस होना, डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स, सो दैट इज द फीचर ऑफ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वेरी सिंपल। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड, ओके। Coming to the next questions, that is fourth, fifth, yes. Coming to the next question, that is what is the best initial response of the nurse to a wife who is still living with her abusive husband? A, you must leave your husband immediately. B, I can help you, would you like the number of a crisis center or hotline? C, have you ever filed a complaint with your family? And D, why do you allow yourself to be treated this way? So I want from you people ki please write the answer of this questions in the comment box, and in next session मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ओके। सो टिल दैट टाइम प्लीज स्टे फोकस, लगे रहो, जमे रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।